हाय देन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं। आज हम एक मार्केट में और यहाँ पर आपके दोस्तों के साथ करेंगे हम बहुत सारी बातें। लेट्स सी आज हमें कौन मिलता है और हमारे साथ क्या कुछ शेयर करता है। हम ये समझते हैं कि इंसान का जिस्म जिसके अंदर एक रूह है, लेकिन अगर हकीकत की तरफ देखा जाए और गहरी सोच से सोचा जाए तो हमें पता चलता है कि इंसान जिस्म नहीं है बल्कि इंसान खुद एक रूह है और वो एक जिस्म में कैद है। रूह का सफ़र होता रहेगा दूसरे जहान में भी और इस जहां के बाद। जिस्म सिर्फ इसी जहां के लिए है और इसी जहां में ही ख़त्म हो जाएगा। बात बहुत मुख्तसर सी लेकिन बात बहुत ही प्यारी। आज चलिए आपके दोस्तों के पास चलते हैं और उनसे मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं, देखते हैं आपके दोस्त हमें क्या बताते हैं अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या शेयर करते हैं हमारे साथ और किस तरह से, कितनी जहानत से और कितनी जिसे कहते हैं ना कि हाज़िर दिमागी के साथ हमारे सवालों का जवाब देते हैं। और अगर वो हमें सही जवाब देंगे तो मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर्स उनके, अगर सही जवाब नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर्स नहीं मिलेंगे। और सही जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो प्रोग्राम को आगे तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि हमारे जो सवाल जो हमने आज आपके दोस्तों से किए थे उनके सही जवाब क्या हैं। तो जनाब बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और देखते हैं कि वो कहाँ हैं। आइए मेरे साथ। आज हमारे साथ एक फॉरेनर भी मौजूद है और हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी मौजूद हैं। दोनों जो है हमारे साथ है। बालंगल में हमारा इंटरव्यू होने जा रहा है तो फ़न भी होगा और मज़ा भी होगा। लेट्स सी कि हमें क्या कुछ सुनने को मिलता है। सो व्हाट इज़ योर नेम? Hi, my name is Mirko. Your name is Miracle? Yes. Oh my God! So you know what is a Mirko, I thought that is Miracle. Okay, Mirko, because I have heard your name for the first time. That is the reason I was like mixing it up with some other thing. Okay, what is your full name? Mirko Ernst George Kraft, but it's in common you'd say just Mirko Kraft. I cannot copy your accent because you know it will take a lot of time. Well, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाफे महमूद चौधरी। शाफे महमूद चौधरी, वेल गुड। शाफे अभी आपसे हम बात करेंगे, पहले हम मिरको से ज़रा बात करें। मिरको, where are you from? I'm from Germany, Göttingen. Okay, so what, is that the capital of Germany? No, the capital is Berlin, and that's around about 400 kilometers away from where I live. Tell me something amazing about Berlin. Amazing about Berlin, culture clash. People from all over the world live in Berlin, and it's still really peaceful, and you have different kind of cultures which live totally in peace and interact and work together and make it a strong, independent city for itself. Okay, tell me one thing. It is a multicultural society when you're talking about Berlin. So what is the reason behind that everybody is living in peace and there is no clash in between? Okay, there is a little clash, of course, but besides, almost everybody is well educated, and I think education is a big gate to peace. So you think that education is a big gate to peace? Well, but people are here in Pakistan. You must have seen people. So how did you get about it, and what have you seen here? So far here, it's my first time in Pakistan, and I'm super positive surprised by the warm-hearting and welcoming joy of the Pakistan people. And I'm not gonna lie, that's what I told him last night too. I'm so surprised. I love the people. I love a lot of the culture. I really enjoy the food, and I wish it wasn't that chilly because otherwise I would have gone north to Giglet for hiking. So far I only made it to Islamabad, Karachi and Lahore. Lahore. Yeah. So first Islamabad, then Karachi, and then Lahore. You must have seen different cultures as far as Islamabad is concerned, then Karachi, and then Lahore. So what did you find the best? Was that Islamabad, Karachi, either Lahore? I gotta admit that due to so there are a lot of new things for me. In Europe, everything is a lot different. So to not be too far out of my comfort zone, I gotta admit that Islamabad is my favorite city so far because it's quiet, it's calm, it's really green. And on second place, it is Lahore. And then Lahore. And why not Karachi? Karachi was too much information for me. On two less. Metropolitan city, and it's a lot of concrete structure. But you must have visited the beach as well. I haven't, to be honest. I haven't been to the beach because I was in. Why? Because I was in Dubai before. मैंने क्यों नहीं लेके गए बीच पे? बहुत लेट मिले थे। ये
बहुत लेट मिले तब तक हम घूम फिर चुके थे कराची. Is that the reason? हाँ ये साहब है. How easy? मतलब आपने इनको कैसा पाया? क्या मतलब? बिकॉज आपने ही बताया कि आप इनको पाकिस्तान में ही मिले हैं और तभी आपकी दोस्ती भी बढ़ी. सो एकदम से मिलना किसी के साथ जो बिल्कुल एक फॉरेनर हो, बाहर से आया हो, तो एक कंपैटिबिलिटी कैसे बनी और कैसे आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं? असल में हुआ ऐसा कुछ था कि हम लोग मिले थे जब मैं लाहौर आ रहा था, तो डेवो के टर्मिनल पे मिले थे और वहाँ पे हमारी यूं ही एक रैंडमली टॉक शुरू हुई थी. और फिर मुझे इन्होंने बताया कि ये बस पे जा रहे हैं 23 घंटे का सफ़र करने के लिए और वाईफाई इस्तेमाल करेंगे. तो मैंने इनको पहले ही बता दिया कि मैंने बोला वाईफाई नहीं है क्या कहते हैं, और इन्होंने बोला कि सिम भी नहीं है. तो फिर मैंने इनको यूं ही एक सिम पकड़ा दी. मैंने बोला चले आप सिम रखें और अपनी ना ये ट्रिप जो है वो आराम और सुकून से गुजारें. तो फिर हमारी अब बस में जब बातचीत हो रही थी. सॉरी, आपका नाम? मेरा नाम शाफे है. शाफे, आई थॉट हाशिम. वेल शाफे, ओके. तो जब हमारी बस में बातचीत हो रही थी तो फिर मैंने बोला ये तो मतलब अपने ही बॉयज़ की तरह है. तो फिर मैंने उसको बोला कि आप लाहौर आओ, फिर हम थोड़ी यहाँ पे घूमना फिरना और अयाशी करते. गेटिंग अलोंग विद द फॉरेनर, ये एक्सपीरियंस आप बताइए, हाउ इज़ इट? मतलब मैं इनको वैसे जहाँ तक बातचीत हुई है ना, अब ये फॉरेनर कैटेगरी के अंदर नहीं रहे. God, that is amazing and that is so superb. हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है. Miriko, anything that you want to share through camera? Message? Do you want to sing a song or anything? I don't want to sing a song, but I just want to admit that when I came to Pakistan, friends and family told me that be careful because you don't know how dangerous it might gonna be, and I was a little, Pakistan. Yes. Oh my God. That's exactly. And but I love going on adventures, so I didn't listen to them, and I went outside, and I almost, as I mentioned before, I almost only got super nice people welcoming, and I will tell my friends, my family, I want to go here for hiking, for Gilgit, as I mentioned, because it's such a beautiful place to be. Yeah, Gilgit is amazing, Skardu is amazing, Khujrab, Dasu, there, every place that highlands are just super amazing, and you will always remember your visit to Pakistan. Well, now I have a question for you. Let's see, Miriko. You are going to answer या शाफे, आप जवाब देते हैं. So, do we team up or do we play? Yes, you're going to team up. Okay, that's good. Well, okay. So my question is, tell me, where is the smallest bone in the human body? I'm going to give you 3 options. ear. Oh my God, he's so smart. Well, I have a gift hamper for you, Miriko. Thank You will you. always remember, and thank you so very much for coming and talking. Thank you so much. Thank you so much. It was a really pleasure nice with meeting you. you. It Same was a pleasure. Thank you, Shafiz. Thank you so much. शुक्रिया शुक्रिया. प्रोग्राम में बहुत छोटे से मुख्तसर से ब्रेक क्या कर रहे हैं, बहुत भी और अमेजिंग किस्म के दोस्त हमारा इंतजार, तो हमारे साथ रहिएगा. मोहब्बत के निशान अब भी धरे रह गए, मोहब्बत के निशान अब भी तेरे रह गए, तेरे नाखून मेरे सीने में गड़े रह गए. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हमने मिलवाया था आपको कुछ अमेजिंग दोस्तों से, बहुत सारे भी अमेजिंग दोस्त हैं. देखते हैं कि सरप्राइज़ है वैसे आपसे मिलने के लिए कौन इस वक्त आ रहा है. तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं. So guys, we have people from Indonesia with us. बात करते हैं. Let's see कि हमें क्या कुछ जानने को मिलता है. What is your name? My name Fitria. Can you please just repeat your name? Fitri. Fitri. Yeah. Okay, Fitri, tell me your full name. Fitria Serbunit. Fitria Sarbonit. Okay, what is the meaning of Fitria? Fitri. Because I'm born when Idul Fitri. You know Idul Fitri? Okay, fine, just forget about it. Tell me something amazing and many things, not just something. There would be many things amazing about Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia have many paradise. Exactly, I am living in. Live in the capital? No. But have So where do you live? island in Indonesia named Raja Ampat. Rajampa. Yeah. Okay. So she lives in an island, and the name of the island is Rajampa. Yes. So is that a tropical island with lots of rain and lots of greenery? Yes, we have. Indonesia have. And
What about humidity? People say and people complain about humidity, when especially Pakistani, because Pakistani people, they are not mostly used to that kind of environment where there is a lot of rain and a lot of green. Yeah, maybe only too much pollution, maybe. Maybe. Okay. So Fitri, tell me about the food. So how did you find food over here, and what did you like most about Pakistan? Indonesian food is better, either Pakistani food is better? In Pakistan, I like barbecue, but different. Indonesia also have name satay, but different tasty, but little same. But they are almost the same. Okay. So Indonesian people, are they like happy, welcoming, social, jovial? What kind of people live in Indonesia? Tell me things about people who are Indonesians and their culture, their hospitality, their behaviors to other people. Okay, fine. Aapka naam. What is your name? Nur Sakina. Nur Sakina. Well, Nur Sakina is a very familiar name. And Nur Sakina, do you know that we also have that similar name in Pakistan? Well, girls have name like Noor, and some girls have name like Sakina, and both names are just beautiful. Nur Sakina, what do you do? Much. Yes, exactly. What is your work? No have job, but So you're a household lady. Do you have kids? yes. How many kids do you have? Two. One doctor, one son. Wow, one daughter and one son. So are they school going, or they they are grown up kids? Yes. Doctor mean now university. Oh, now her kids are in university. Mashallah, mashallah, mashallah. So Noor Sakina, what plans do you have about Pakistan and your visit here in Pakistan? Maybe You visited Lahore for the first time? no this time for me. Wow, this is your first time. And what about you, Fitri? Many times. Many times. She has come here many times. Everyone I'm coming. Every time she's coming to Lahore. So what is exciting about Lahore? Tell me one thing exciting about Lahore. I'm coming because my job, but I'm travel She's agent. traveling here because of her job. She has work to do, and that is the reason that she is so frequently traveling and visiting Pakistan, and especially Lahore. So, Noor Sakina, tell me one thing amazing about Lahore: food, people, culture, anything that you like the most. Lahore, that people, I mean, much unique. Okay. Pakistan. What about food? Food, tasty. What do you like in Indonesian food? Indonesian food, name Indonesian food, nasi goreng. Okay. Well, थोड़ा सा difficulty मुझे भी हो रहा है समझने, because that is the वो language barrier भी है, but accent barrier भी यहाँ पर आ रहा है. Somehow now I have a question for you. Let's see Fitri or Noor Sakina who is going to answer my question. So tell me, how many countries are there in the world? 100, 155, 195. What is the right option? I repeat again. How many countries are there in the world? 100, that is option A. Option B, 155. Option C, 195. D, 195. Yes, 195, that is option C. Correct answer. हम और आपकी जानिब से gift hamper for you. You will always remember. Thank you so very much, and it was really nice talking to you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच नूर सकीना. हम और आप में बात छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, ये कमर्शियल ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद हम आपको मिलवाने वाले हैं आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, इसलिए आप हमारे साथ रहिएगा. मोहब्बत के निशान अब भी धरे रह गए, मोहब्बत के निशान अब भी तेरे रह गए, तेरे नाखून मेरे सीने में गड़े रह गए. वेलकम बैक. हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से और आपके दोस्तों के पास आपको लेके जा रहे हैं जो आपको इंतज़ार कर रहे थे. तो आइए मेरे साथ. क्या नाम है आपका? उसामा. उसामा. टेल मी योर फुल नेम. उसामा. My full name is Mohammed Usama Lodi. Mohammed Usama Lodi. What do you do?
I am doing job as a software engineer at Liberty. Now I am coming. Liberty Market. Exactly. Basically, I'm from Kamoki, and I'm. कामोकी सिंध है, पंजाब है. Kamoki is Tehsil of Gujranwala. It is situated in Punjab. सॉरी मतलब माय बैड, मैंने नहीं सुना कामोकी ज़रूर सुना है, लेकिन मुझे थोड़ा मिक्सअप हो रहा कि लाइक इज दैट सिंधी स्टेट या कोई इधर हमारे पंजाब में है. वो वेल आई स्टैंड करेक्ट. तो ये हमारा है पंजाब का. ओके, सो प्लीज कंटिन्यू. Basically, I'm from Kamoki, and now I'm hospitalized in Lahore at Model Town. Since when? Almost from last 1 year. What are your future plans? Where do you see yourself in the coming 5 years now? Currently I am doing job as a software engineer, and next in coming 5 years I would like to be a web developer lead. In next 5 years my goal is to be at the highest level of my career. Okay, fine. So sorry, I forgot your name. Usama. Well, Usama, if not software engineer, then what? Then I would like to be go to out of country. And then what? Then I would try to settle down there just because of. And try your luck in some other field? Exactly. Okay. So you think consistency is the key of success? Yup. If you find something is difficult, you cannot do it. Like someone, if you have fear of something, then you should learn about that. Because fear is conquer of success. If you work and learn consistently about that thing from which you have fear. And do you consider fear as your best teacher or your worst teacher? I guess my personal experience is like a worst teacher. Worst teacher? But I'm still in learning phase. And I'm damn sure that after some time I will conquer my fear. Inshallah. Usama, anything that you want to share through camera, poem, song, poetry? Like I would like to dedicate one poetry to someone. Okay, fine. To someone. Okay, fine. Please continue. मोहब्बत के निशान अब भी तेरे रह गए. मोहब्बत के निशान अब भी तेरे रह गए. तेरे नाखून मेरे सीने में गड़े रह गए. हम चाहते तो बदल सकते थे किबलाए दिल, मगर नहीं बदला. तेरे दर पे खड़े थे और खड़े रह गए. So sweet. Good. कमिटमेंट है भाई, और तो कुछ नहीं. Usama, now I have a question for you. ऐसे आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर आप पहुंच पाते हैं या नहीं, गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि हम कभी कभी मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा ओवरव्यू करने की या बड़ी हैसल में आने की, और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं. बट समझ जहाँ हमने अपने धीरे मिजाज से और संभल के और आसानी से हम समझते हैं, सुनते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हम जल्दी अपने जवाब तक पहुँचते हैं. सो माई क्वेश्चन इज़, टेल मी, ऐसा कौन सा डर है जिससे औरत और भी खूबसूरत हो जाती है? ऐसा कौन सा डर है जिससे औरत और भी खूबसूरत हो जाती है? Yes, डर. Maybe there I can help you if you want. Yeah, sure. Okay, fine. So pause भी होते हैं, clause भी होते हैं. We are missing something over here. इस डर के साथ कुछ और भी है. Like अगर ये डर अभी अधूरा है. इस डर में कुछ और भी आप मिला सकते हैं. अगर आप वो इसे मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा. औरत को कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? जैसे कि वो उसका पसंदीदा शख्स उसे खो ना दे. नहीं. ओके फाइन. आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें. वर्ड जो है उसमें कुछ मिसिंग है. अब इसका जो इनिशियल पार्ट है इसको कंप्लीट करना है. ओके. डर के साथ लगा दीजिए जो भी लगा सकते हैं. पाउडर. यस, पाउडर इंडीड. यस, करेक्ट आंसर. उसामा, गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा. आपने से बात की थी. थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक.
ओके, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं आपके और दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪਿਆ ਏ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪਿਆ ਏ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਫਾ ਪਿਆ ਏ, ਸਾਡਾ ਛੱਲਾ ਮੋੜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੱਲਾ ਆ ਪਿਆ ਏ। वेलकम बैक। हम और आपको लेके जा रहे हैं आपके अमेजिंग दोस्तों के पास जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शानदा। शानदा, ब्यूटीफुल नेम। शानदा। सो जो नाम तो सही था बोले ना, ताकि पता चले कि शानदा है या शानजा है। ओके शानजा, टेल मी योर फुल नेम। शानजा अफजाल। शानजा अफजाल, आप क्या करती हैं? हिफ्ज करती हूँ। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। दैट इज़ द रीज़न कि इन्होंने अपने नाम को वो दाल का जो अरेबिक एक एक्सेंट आ रहा था उस वजह से आप अपने नाम को ऐसे से प्रोनाउंस। नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके शानजा, क्या प्लान्स है अपनी लाइफ में? कुरान हिफ्ज के बाद आप क्या करना चाहेंगी? डॉक्टर बनना To चाहती be a doctor. Okay, so where do you see yourself after 5 years or after 10 years? Okay, tell me, कहाँ देखती हैं आप अपने आप को 5 साल के बाद? 5 साल के बाद स्कूल में देखती दोबारा स्कूल में? कॉलेज में नहीं? नहीं, वैसे यूनिवर्सिटी में भी नहीं? So sweet. अच्छा शानजा, मुझे ये बताएं कि हिफ्ज के बाद आपके पास कितना वक्त होता है, और अगर होता है जिसमें आप कोई और एक्टिविटी कर सकती हैं, जैसे कि आप अपने बहन भाइयों के साथ टाइम। बहन भाई हैं आपके? एक सिस्टर है। एक सिस्टर है। अच्छा, अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करती हैं? जी। अच्छा ठीक है। तो आप दोनों बहनें जो हैं आपस में किस किस्म के गेम्स खेलती हैं? लूडो खेली। और आपकी बहन छोटी हैं या बड़ी हैं? बड़ी है। बड़ी हैं। अच्छा, फ्रेंडशिप है? जी। और बहन के साथ शॉपिंग करने जाती हैं? हाँ जी। आपका नाम? शाजिया। शाजिया। शाजिया, इज शी योर डॉटर? यस। तो आपकी 2 बेटी हैं? जी जी माशाल्लाह। आप क्या करती हैं? मैं सैलून का काम करती हूँ। कब से कर रही हैं शाजिया? मुझे हो गया 10 ईयर्स। आपकी बच्चियाँ भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा शाजिया, आप ये चाहेंगी कि कल को जब आप अपने काम को भी एक्सपैंड करें, क्योंकि आप इस वक्त सेल्फ सफिशेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही और ना ही किसी के लिए काम कर रही हैं। इफ़ आई एम राइट? जी जी बिल्कुल। आपका अपना काम है। आप चाहेंगी कि आप अपने काम को जब एक्सपैंड करें तो आप अपनी बच्चियों को भी अपने ही काम में लेकर आएँ, ताकि वो भी आपके लिए एक सपोर्टिव फिगर बन सकें। जी जी जी। चला, प्लान से बहुत अच्छे हैं फिर। जी। कब शुरू किया था आपने? मुझे 10 साल हो गए। क्या सोच के शुरू किया था पॉलर के काम में, और किस किस ने सपोर्ट किया, या खुद ही से कहा कि नहीं बस कोई सपोर्ट कर भी नहीं रहा है तो बस मैं अपना काम में शुरू करूँगी? मेरे हस्बैंड ने किया था, मेरी सिस्टर ने। वाह, अमेजिंग, वेरी नाइस। अभी भी वो साथ ही है। हम कह रहे हैं आप ज़रा। भाई देखिए, सीधी सी बात है कि अगर शादी से पहले आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं और शादी के बाद आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, आपको आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको किसी और कुछ की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और बात भी बनती है कि आपको किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बनता ही आपके हस्बैंड का है कि वो आपके लिए ऐसा करें। सो इट्स अ ब्लेसिंग शाजिया। मैं कहूँगी कि हमारे जिस किस्म की सोसाइटी है, ईस्टर्न सोसाइटी में एक टाइम होता था कि हस्बैंड्स इन बातों में इतने सपोर्टिव नहीं होते थे, लेकिन वक्त बड़ा बदल गया है और बड़ा हमें अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ से मिलती हूँ जो मुझे कहती हैं कि हम पार्लर का काम कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं हमारे साथ। सो बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? बेसिक हम पाकपतन शरीफ से हैं। तो अब लाहौर में सेटल्ड हैं? जी लाहौर में। चलें, आज के बारे में बताइए कि आज मार्केट में क्या करने आए? आज मार्केट में बच्चे के साथ आई थी, इसने कुछ परचेजिंग करनी थी, और हम लोग ज़रा काशी सैलून भी आए हुए थे, वहाँ से भी परचेजिंग करनी थी। नाइस, अपने सैलून के लिए? जी जी। अमेजिंग हो गया। अच्छा मुझे बताइए, आप कितनी ज़बानें बोल सकती हैं? एक ही ज़बान बोल सकती हैं? उर्दू बोल सकती हैं? कौमी ज़ुबान ही उर्दू है। ये बेहतरीन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी हैं आप तो। अच्छा शाजिया, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई रेसिपी अच्छी सी शेयर करना चाहें जो आप अपने बड़ी क्विक सी हो, बड़ी अमेजिंग सी हो, या आपको लगता हो कि नहीं भाई ये मेरी कोई स्पेशलिटी है जो आज मैं चाहती हूँ कि बाकी ख़वातीन भी सुने और वो भी ये चीज़ बनाएं? तो मैं तो खाना बनाती ही नहीं हूँ। अच्छा सच में? जी। कभी नहीं बनाया? नहीं। खाना किसने बनाया?
मेरी सिस्टर बनाती है। हमेशा से? जी हमेशा से। अरे भाई ये तो फिर बात ही हम नहीं कर सकते यहाँ पर। चलें फिर हम आपसे करेंगे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब सवाल मेरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब आ सके। और सवाल मेरा ये है कि वो क्या चीज़ है जो आप एक दफ़ा खा लें तो दूसरी दफ़ा नहीं खाना चाहेंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो खाने की ही चीज़ हो, लेकिन हम खाते हैं। धोखा। कैसी प्यारी है ना आप भी। वैसे हमारे आपके जाने से छोटे से टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी शाज़िया। थैंक यू सो मच शांजा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान। फरहान, पूरा नाम बताइए। फरहान अहमद। फरहान अहमद, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक नारोवाल से है। नारोवाल से। आप लाहौर क्या करने आए हैं? शॉपिंग करने आया हूँ। क्या खूबसूरत सी चीज़, प्यारी सी चीज़ें बताइए नारोवाल के बारे में। नारोवाल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो उसके राइस हैं, चावल है। उसके अलावा जो का माहौल कैसे, आबो हवा कैसी है? माहौल ज़रा ठंडा है क्योंकि वो कश्मीर का मिजाज भी ठंडा है। मिजाज भी ठंडा है जी। प्यारे आपको लगता है कि गर्म इलाकों के लोगों का मिजाज भी गर्म होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठंडे इलाकों के लोगों का मिजाज भी ठंडा होता है? जी बिल्कुल। क्या बात है कि पठान क्यों इतना गर्म मिजाज होते हैं? बस देख लें। हम जब आपने ऐसी बात कर दी तो हम बात करेंगे हाईलैंड्स के लोगों के बारे में। सो हाईलैंड्स के लोगों के बारे में कहा जाता है बड़े गर्म मिजाज हैं, बड़े क्रूड हैं और बड़े रिजिड हो जाते हैं। सो ये भी बहुत सारे रीजन है। खैर इसका आबोहवा से ताल्लुक नहीं होता और हम ये नहीं कह सकते कि गर्म इलाकों में रहने वाले लोग जो है वो गर्म मिजाज होते हैं। हर किसी की अपनी तबीयत है, हर किसी का अपना मिजाज होता है। ओके जी चलिए। और बताइए कि आप कहाँ देखते हैं अपने आप को ज़िंदगी में 5 साल के बाद? मैं तो इधर ही देखता हूँ अपने आप। 5 साल के बाद भी आप यहीं पे देखते हैं? इधर ही देखता हूँ। अपनी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेशन और नहीं सोच के रखी है, कोई और इम्प्रूवमेंट, कोई डेवलपमेंट? मैं ज़्यादा से ज़्यादा कल तक सोचता हूँ या अगले खाने के टाइम तक सोचता हूँ। अगले खाने के टाइम तक सोचते हैं, आगे का नहीं सोचते हैं। लेकिन इंसान को आने वाले वक्त की प्लानिंग तो करके रखनी चाहिए। जिस तरह का ये मुल्क है, जिस तरह की ये सियासत चल रही है, इधर जो हो रहा है, मैं तो नहीं समझता कि जैसी सोच रखेंगे वैसा ही होना शुरू हो जाता है आपकी ज़िंदगी में। इज़न्ट इट? हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी का मुस्तकबिल जो है वो सेव नहीं है। ये कहते हैं कि यहाँ किसी का मुस्तकबिल जो है वो सेव नहीं है। खैर तो फिर एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई शायरी, कोई गाना या मैसेज देंगे ऐसे ही? मैं तो शेर सुनाना चाहता हूँ। वो पंजाबी का शेर है कि जिदे नाल भी वाह पिया है ओही लौंदा दा पिया है, जिदे नाल भी वाह पिया है ओही लौंदा दा पिया है, जिदे ही गल पूरा आया ओदे ही गल फा पिया है, साडा छल्ला मोड़ दे सानू ते तेरा छल्ला आ पिया है। अच्छा इसमें एक लाइन मुझे समझ में नहीं आई, आप इसको जरा उर्दू में मतलब बता सकते हैं? मेरी लाइन तो समझ में आ गई। उर्दू में ये है कि जिसके साथ आप चलते हैं, आप एतबार करते हैं, चलते हैं, वही आपको धोखा देता है। वही धोखा देता है। तो जो हालात चल रहे हैं बस आजकल किसी पे एतबार भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो हासिल निचोड़ है वो बात का, गुफ्तगू का, हमारी शायरी का वो यही है कि आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते। जिस पे एतबार करते हैं आपको धोखा दे जाता है। तो हम आपको धोखा नहीं देंगे, हम करेंगे आपसे सवाल और अगर सही जवाब देंगे तो हम आपको टाइम पर दे देंगे और अगर सही जवाब नहीं देंगे तो हम आपको टाइम पर नहीं देंगे। फेयर डील? जी चलें जनाब। तो जनाब हमारा सवाल आपसे ये है, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं आती? फटने की आवाज़ नहीं आती? मेरा ख्याल है कि खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, दूध फटने की। और आपकी जानिब से छोटे से टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे फन से भरपूर वो सारे सवाल जिनके जवाब हमने आपके दोस्तों से जानने की कोशिश की। बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिए, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो हमें सही जवाब नहीं दे सके। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जिन्होंने प्रोग्राम के दरमियान में ज्वाइन किया होगा और वो सोच रहे होंगे कि अगर हम उनके बाकी दोस्तों से कौन से सवाल किए थे। वेल गौर से सुनिए कि सवाल क्या थे, उनके सही जवाब क्या है। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या है कि जिससे हम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन हम ज़ाया कर सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते तो वक्त। अच्छा बहुत सारे दोस्तों से हमने ऐसे रैंडमली सवाल किए थे क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, तो उनकी इंटरेस्ट की बातें और उनकी जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें जो अक्सर लोगों को पता होती है। हमारे यहाँ फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, लेकिन सरप्राइजिंगली जब हम मिलते हैं किसी फॉरेनर से तो हमें पता चलता है कि भाई जो हमें बड़े होकर बातें पता चलती हैं वो वहाँ पे बच्चों को भी पता होती हैं और बहुत जल्दी लोगों को पता होती हैं। जो हम इतनी देर लगाते हैं सोचने में, उसका जवाब हमें उनकी तरफ से फट करके मिल जाता है। तो एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि ऐसा कौन सा डर है जिसे औरत और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो हमने गेस भी दिया और हेल्प करने की कोशिश की। सो वर्ड था डर, और अगर इसके शुरू में हम ऐड कर देते हैं पाओ तो इट मेक्स पाउडर। वेल
एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या ऐसी चीज़ें जो एक बार खाने के बाद वो दोबारा कभी भी नहीं खाना चाहेंगे, और वो चीज़ है धोखा। सब दोस्तों ने सही जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये फन से भरपूर सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा कि आपको जो हमारे नए दोस्त मिले उनसे मिलकर आपको कैसा लगा, उनकी बातें सुनकर आपको कैसा लगा, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर आप हमें देखना चाहते हैं और भी बहुत कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42। ज़ोया रंधावा आपसे मिलेगी नए शो में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।